I am Professor Deepak Zade. Now we'll start with our subject, engineering mechanics. Good evening, all. Now, Isha Patil. Hi, hello. Yes. So, should we start? Yes, done. Now, see, we'll start with engineering mechanics. Engineering mechanics. Now, we have already studied physics in 11, 12. Yeah? Engineering mechanics is basically a branch of physics. It is a branch of physics. Now in physics, whatever the part we have studied, that some part of physics is required, where mechanics is a branch in which we will study effect of forces on the bodies. Effect of forces on the bodies. Effect of forces on the bodies means what? Effect of forces. All you can hear me properly? Karthik can't hear, but my mic and each and everything. Yes, yes. Other students, Karthik, you check your Karthik Gupta. You just check your earphone. Huh? Uh, yes, yes, yes. I am audible. Okay, thank you. Now, here mechanics is listen carefully. Yeah? Firstly, I will introduce complete subject so that you will feel subject is easy and you will not face any difficulty. Okay. So physics we already studied. This is a branch of physics in which we'll study effect of forces on the bodies. Now, effect of forces on the bodies means what? For example, if we'll take say maybe at home where you are sitting, maybe there may be some you can see your mobile, right? The mobile is now at rest. If we'll apply force, right, on that mobile, so maybe you can say if you apply some sufficient force, that mobile will move in the direction of what force we applied. Okay, that means effect of force is what? If initially body is at rest, body may start its motion, or if initially body is in motion, then body may comes to rest. That is effect of force. Or sometimes if forces are applied, still body doesn't moves in any direction, remains at rest. There simply you can say there is a chair, and if you are sitting on a chair, that chair will remain stationary. That means always you can't say ki force is applied and body starts its motion. When number of forces are applied on the body or acting on a body, and that particular body remains at rest, that means you can say that body is said to be in equilibrium. And when the body remains at rest under the action of forces, that branch of mechanics in which bodies remains at rest is called as what? Statics. That one will study under the head statics. And when forces are acting and then bodies moves with some velocity, maybe some acceleration, right, then the branch of mechanics is called as what? Dynamics. That means broadly our mechanics is divided in two parts, right? Statics and dynamics. So in statics bodies remains at rest, and in dynamics bodies moves from one location to another location. Clear? This dynamics again is divided in two more parts. Okay. Now, if we'll see effect of force, as a one stone if we'll take and we'll apply force, so it moves in the air and strikes somewhere on the ground. And if we'll analyze its motion, that means what is its radius of curvature, what are the components of acceleration, right? Maybe you can say its velocity at each and every instant, then what is its position, but without considering the cause of motion. That means without considering the force which causes the motion, and without considering the mass of the body, if we'll analyze simply its motion, then that branch is called as what? It is called as kinematics. It is called as kinematics. Which one we have studied in 11th physics basically. It's a basic part we have studied. Where in that one, forces and masses of bodies doesn't comes into picture.
That means how we'll define this kinematics part. Kinematics is a branch of dynamics. It is a branch of dynamics in which we will analyze motion of body. In which we'll analyze motion of body without considering the cause of motion, means forces, couples, torques, and without considering mass of a body. Okay, and if we'll analyze motion of body considering cause of motion, that means forces, and considering masses of bodies, that branch of dynamics is called as what? It is called as kinetics. Okay, that means our complete mechanics, right, is divided in two parts. First one, statics and dynamics. In statics, bodies, all bodies remains at rest. Simple. Though forces are acting, still bodies remains at rest. That means bodies remains in equilibrium. This branch of mechanics is called as statics. And a branch of mechanics in which under the action of forces bodies moves from one location to another location. Simply you can say bodies are in motion, सब motion में रहता है, right? Bodies moves from one location to another location. Branch of mechanics is called as dynamics. अभी dynamics भी दो part में आ गया, kinematics and kinetics. तो kinematics is a branch of dynamics. Which branch of dynamics? In which will analyze the motion of bodies without considering cause of motion, means what? Forces and masses of bodies. And kinetics is a branch of dynamics in which we'll analyze motion considering cause of motion, means forces and masses of bodies. Clear? Or broadly our syllabus, right, is divided in two parts, that is statics and dynamics. The weightage is also 50-50%. That means statics part you can say it's a weightage in our university exam is 50%, and dynamics is also around 50%. Okay, now mostly in dynamics we'll start from this kinematics part. What we have studied is kinematics of particles we have studied, but rigid bodies we have not studied. So that one also we have to study, where what you have studied in 11th physics, and here mostly you will get what you can say problems, and which also carries 5, 6, 7, 8 marks. Whereas in our 11th, or you can say in CET or in JEE or in NEET, what papers were given, normally you will get MCQs, and 2 marks, 3 marks, 1 mark, like this. The system is slightly different. Therefore, problems are a little bit difficult, but and they are application part, application of physics, you can say, right? That means once you'll understand topic, and then easily solutions are possible, but maybe you can say there will not be repetition of same problem. But once logic will understand, then you'll not face any difficulty. uh, this one is our slight difference in our 12th 11th 12th standard and our first year engineering, right? In kinetics also same thing, you have studied laws of motion in physics. So it is extension of that one, laws of motion, considering masses and forces, Newton's first law, Newton's second law, Newton's work energy principle you have studied, momentum you have studied. So here we'll get some problems which carries 5, 6, 7 marks, right? Where each and every basic part is required. So when we'll do this dynamics, we'll start from basic part, starting from what you know, equations of motion, and V equal to U plus AT, सबको पता है. V equal to U plus AT, V square equal to U square plus 2AS, S equal to UT plus half AT square. All you know these equations. But when we'll apply this equation, you'll face some difficulties, right? And most of the time solutions, correct answers are not possible. So that one will start in our dynamics part, and we'll understand clearly. In statics, broadly what you have to study, there is one in statics particularly. Yeah. Now we'll see about statics. Okay, statics. In statics, one independent topic where some center of mass we have studied in physics. What you have to study related to only area, that is nothing but centroid topic to study, where weightage of this chapter will get only one problem, and which carries 8 marks, sometimes maybe 6 marks, 6 to 8 marks weightage, right? That may vary slightly. Then next part, what we'll see is nothing but what called as a force system. In that one, coplanar force system. Coplanar. From name itself, you can judge. Coplanar means in one plane. So when forces, all forces which are involved in a force system,
If they acts in one plane, then the force system is called as what? Coplanar force system. In coplanar force system, what we'll study, so again there are two parts. We'll first see all force system, and in that one we'll see how to find out a resultant of different force system, and then we'll see here equilibrium, right? When number of forces are acting, then when bodies remains in equilibrium under coplanar force system, right? So this one part we study. This is equilibrium. That means resultant of coplanar force system, resultant of and equilibrium of coplanar force system. Okay, resultant and equilibrium. So this one will study, and this one again this resultant carries, you can say, around 8 marks. Equilibrium is you can say weightage is very high, around 20 marks questions will get on equilibrium, where we'll get some equilibrium of beams. Beam means it is application part. Maybe in building if you see vertical column रहता है and horizontal जो रहता है structure में, it is what? Beam. So on beams, equilibrium of beams, when number of forces act, I will find out reactions, each and everything we discuss in coplanar force system. That means it is in two parts, resultant and equilibrium. Next, in statics, what we'll do, we'll study friction in detail, right? Block to block friction, some wedge friction, ladder friction, laws of friction, laws of dry friction. The weightage of this topic is around, you can say, 8 mark. We'll get one question. Sometimes we'll get two questions. 8 plus, you can say 6, maybe 14 marks, right? But normally 8 marks. Friction. Clear? That means centroid around 6 to 8 marks. Coplanar force system resultant is of 6 to 8 marks. Equilibrium is around 20 marks, right? And friction minimum 8 marks. Sometimes you may get 4 to 6 mark. One more question. This one is about friction. Next part what we'll study in statics, right, is nothing but what? So here this one is basic. Centroid means some independent topic. Then coplanar force system. Resultant आगा equilibrium आ गया, right? And then friction. Now we have to study again what? Non-coplanar force system also, right? Non-coplanar. That means when forces when doesn't acts in one plane, they acts in different plane, then it is called as what? Non-coplanar force system. And it is non-coplanar force system. In non-coplanar force system, you'll get some x, y, and z, means along all three axes will get what? Components. And then we have to find out what is the resultant of that non-coplanar force system. If it is in equilibrium, we'll find out what some reactions. Okay. Now we'll not go in detail of each topic, because once we'll complete one by one, एक chapter हो गया, we'll start with new one. Again we'll complete, again we'll start with new one, right? So our as per university, you can say schedule, this topic, or you can say our complete subject, this subject theory exam, which one is at the end of semester, that is of 80 marks. Mechanics is of 80 marks. That means broadly 40 marks, you can say, plus minus 38 to 42, or 40 marks are in statics and dynamics. This is Mumbai University exam, MU University exam, conducted at the end of semester. Okay. Then you will get what? Internal assessment. That means there will be two tests during the semester. First, you can say in midway. That means semester is of 14 weeks. Maybe you can say after 6th or 7th week, mostly first eye, and in 12th week you can say second eye, and then you will get average of that two, and this one is of around, you can say, 20 marks, right? Then there is a term work part. In short, it is written as a TW, term work. Term work means what? Always after completion of each chapter, your professor will give some work, right? Solve some problems at home, called as what? Assignment problems. And you have to submit it in prescribed date or before due date, right? So this one term work part, in that one again your attendance is included, right? Each and everything, your attendance in lectures and practicals, and depending on that one, you will get out of 25 you will get some marks, right? This one is what? 25. That means one university exam, then IA, then term work, and one is nothing but what? There is a oral viva at the end of semester, right? At the end of semester.
Viva oral, which one is again of 25 marks. That means total weightage is around what? 150 marks, right? This is of 150 marks. So here as such will not face any difficulty in mechanics, right? I'll teach you properly from first chapter to last chapter, each and everything, right? So I'm teaching this subject from 1995, where I had worked in various engineering colleges, starting from Datta Mege to my last college was Vidyalankar. I resigned in 2017. Now I'm only taking classes. So as such, will not face any difficulty in this subject. I'm teaching in semester one. I'm basically a mechanical engineer, B mechanical and M Tech in CAD CAM, right? Then in this, you can say all colleges, whatever, I taught number of subjects. In classes, I'm teaching in semester one mechanics. In semester two, there is engineering drawing subject, and almost all subjects of mechanical engineering. Okay. Now, we'll come to our point. We'll not waste our time. Huh? What we'll do? We'll start with simple chapter. Ekdam simple. Huh? And normally I will not tell you mug up some by heart some formulas. Never. If it is very essential, then only. Otherwise, we'll try to solve problems using, you can say, our common sense or logic. So this one is a centroid topic. Mostly we'll get problem which carries a 6 marks, right? Independent and very simple, you can say, chapter. Okay. So centroid, there are three parallel terms. One is centroid, one is center of mass, and one is what? Center of gravity. All are parallel. Where centroid term is applicable to laminas, plain surfaces. Means you can say a piece of paper or thin sheet, right? Thin sheet. Thickness is very, very small. That means we'll get only two dimensions. Thickness is negligible, only two dimensions. Centroid term is applicable to plane surfaces or laminar. But center of gravity and center of mass, these two terms are applicable to solid bodies. Cylinder, maybe cone, maybe cube, rectangular box, right? Any object. Which one is solid? So in center of gravity of any solid body, how will define? So it is a point in the solid body through which total weight of the body is supposed to be concentrated. Such point is called as center of gravity. And center of mass is a point in a body through which total mass of the body is supposed to be concentrated. That means center of gravity and center of mass, you can say, nearly same. Point through which weight passes, such point is center of gravity. Point through which mass of the body passes is center of mass. But that solid body part is not in our syllabus. In our syllabus, there is only centroid. That means easy. Only plane surfaces, right? Find a position of centroid of plane surfaces. Now, for any plane surface, if we take, will not get a third dimension, we'll get only two dimension. That means we'll not get volume, we'll get only area. थर्ड डायमेंशन रहेगा तो वॉल्यूम आता है ना, एक्स वाई एंड थर्ड डायमेंशन इज जेड, तो वॉल्यूम आ गया. वॉल्यूम आ गया तो फ्रॉम इट्स डेंसिटी विल गेट व्हाट? इट्स mass and weight. But if surface is given only lamina having only two dimensions, so you will not get weight or you can say mass. So any surface if we take, right, say this one is nothing but what? A surface, a rectangular surface. Okay, this one is a rectangular surface having some dimensions, right? So as this one is a rectangular surface having some dimensions, so we'll get one dimension is, you can say, height, other dimension is what? Say this is the base of rectangle, right? Simple. This is a plane surface. Now as will not get any you can say weight or mass, you'll get a point in the lamina through which total area of the lamina passes, and such point is called as what? Centroid. That means how we'll define this term centroid? Centroid is defined as a point in the plane surface or lamina through which total area of the lamina passes. That means if I'll say this is a point C, centroid, so area of this lamina
That means say A passes through this point, right? What is the area? Base into height. Simple. In general, this point will get where? So this point lies on axis of symmetry. Simple. But when lamina is symmetrical about one axis, centroid lies on axis of symmetry. Note करते जाओ, this is very important. Any lamina is given in general, है ना? A rectangular lamina है, semicircular lamina है, quarter circular lamina है, maybe sector of circle will get. You may get triangular lamina, right angle triangular lamina. You may get what? Isosceles triangular lamina, right? So for all lamina, any lamina is given. Just check. Is it symmetrical? Yes. Centroid lies on axis of symmetry. Now you may get a lamina where that lamina is symmetrical about more than one axis. If suppose this one is a lamina, circle. If circular lamina is given, and now this is symmetrical about what? You will get axis of symmetry. That means here if I'll represent the horizontal axis of symmetry, so this will be something like this, and a horizontal axis of symmetry. You will get what? Vertical axis of symmetry is possible. Not only two, you will get infinite number of, you can say, axis of symmetry. So you may get a line which is inclined at 45. Again inclined at 45 like this in this direction. Inclined at any angle if you draw line, that will pass through one point. That is nothing but center of circle से pass हो जाएगा ना सबका सब line. That means axis of symmetry means such a line where on both the side will get same area. That means आपका any axis of symmetry will represent, that represent diameter of circular lamina, diameter of circle. Our point is what? If any lamina is symmetrical about more than one axis, more than one, 2, 3, 4, 5, any number of axes, more than one. If there are only two axes, point of intersection निकालते जाओ. Point of intersection represents what? Centroid. जैसा रेक्टेंगुलर लेमिना में, हाँ इधर हाइट है, दैट मीन्स आई विल डिवाइड इन टू पार्ट. या हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा कि नहीं? ऊपर का h/2 है ना, ये h/2, दिस इज h/2. सिंपल. एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा. इज इट सिमेट्रिकल अबाउट एनी अदर एक्सिस? डेफिनेटली यस. ये आपका इधर एक इक्वल डिवाइड दिस b इन टू पार्ट, ये बाबा b/2, इधर का b/2 है ना. आपका वन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट्स व्हाट? सेंट्रोइड. यानी आपको डिस्टेंस पता होगा. अभी देखो ये जो c है लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस पे रहेगा? b/2. एंड ये बॉटम मोस्ट एज से कितना रहेगा? तो ये आपका h/2 आ गया डिस्टेंस. Simply what you have to do, you have to concentrate on distances. Where is the position of centroid? अरे देखो, बोलते बोलते आपको मैं दो लैमिना का तो बता दिया. रेक्टेंगल का किधर रहेगा? सेंटर ऑफ रेक्टेंगल. सिंपल. सर्कल का किधर रहेगा? सेंटर ऑफ सर्कल. सिंपल. दो कंपोनेंट होगा, है ना. दैट मीन्स फॉर rectangular lamina, centroid lies at its center. But problem is what? When you find out these distances, तो लोकेशन यू कैन आइडेंटिफाई प्रॉपरली, है ना. लोकेशन किधर आता है? रेक्टेंगल का सेंटर पे आ गया, है ना. सर्कल का सेंटर आ गया. बट यू हैव टू फाइंड आउट दीज डिस्टेंसेस फ्रॉम सम रेफरेंस एक्सिस. अगर रेफरेंस एक्सिस मींस व्हाट? सपोज ये आपका रेक्टेंगुलर लैमिना दिया है. नाउ यू नो पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना. ओके, उसके सेंटर में आएगा. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ इफ एक्सिस इज गिवन, रेफरेंस एक्सिस, क्या आपका एक्स एक्सिस है ना, ऐसा दिया इधर. दिस इज व्हाट? एक्स एक्सिस. ओके, और ये इधर दिया है. दिस इज व्हाट? ये वाई एक्सिस. ओके, एक्स एंड वाई, ऐसा एक्सिस दिया है. आई विल गिव सम नेम्स टू द एक्सिस. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. आपको सब कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है ना. ये आपका एक्स एक्सिस का एक्सटेंशन इधर आएगा. दिस इज ये आपका वाई एक्सिस. दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस. ओके, point of intersection of x and y axis. Now if any point lies here, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो your x and y coordinate both will be same. पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो x नेगेटिव y पॉजिटिव. इधर थर्ड क्वाड्रेंट में इधर रहेगा तो x y बोथ नेगेटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, है ना. एंड इफ इट इज इन दिस क्वाड्रेंट, fourth quadrant, x positive, y negative.
क्लियर. नाउ जो आपका लैमिना है, राइट, वेयर इट इज लोकेटेड, इन विच क्वाड्रेंट, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, you have to find out distance of centroid from this reference axis. That means ये अगर रेक्टेंगुलर लेमिना है तो यू नो पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड किधर आएगा, ये इधर, दिस इज द सेंट्रॉइड. इधर मीन्स किधर, तो दिस वन इज व्हाट, हाइट, राइट. ये जो डायमेंशन है, दिस वन इज व्हाट, बेस ऑफ रेक्टेंगल. तो फ्रॉम y एक्सिस व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, तो आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा ना, दिस वन. ये डिस्टेंस आपका होगा y एक्सिस से, horizontal distance of centroid from y axis, and same distance of this point from x axis, तो आपका ये vertical distance आएगा, right. ठीक है ना. तो distances will measure from x and y axis. अभी ये जो distance है of c from y axis, ये horizontal distance है, therefore this is represented by x bar. It is x bar. X bar means what? Horizontal distance of centroid. X bar means what? Horizontal distance है ना, which distance? Horizontal. Horizontal distance. Horizontal distance of centroid. Of centroid. From where? किधर से आएगा? Horizontal distance तो आपका y axis से आएगा. From y axis. That means x bar distance will always measure along x axis, horizontal distance. Horizontal distance of centroid from y axis. ऐसे ये जो distance है ना, इन फिगर आई एम रिप्रेजेंट, ये y bar. Vertical distance, vertical distance of what? Centroid. From where? X axis. That means y bar is what? Vertical, है ना, vertical. Vertical distance. Vertical distance of centroid. From where? From vertical distance किधर से मेजर करेंगे? x axis है ना. तो this one whenever we'll find out any distance while solving problem, if you want clear cut answer, किधर भी आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं. Whenever we'll find out x bar, will measure this distance horizontally from y axis. Simple. Y bar निकालना है means vertical distance will find out from x axis, vertical distance from x axis. Okay. Now once we'll get this x bar and y bar for this component, so here for rectangular lamina your x bar will be what? आपका ये B है, point C axis of symmetry पे आएगा, that means this will be what? B by 2. Y bar will be what? So half of x by 2. Clear? So this one is what? X bar and y bar. Like this we'll find out position of centroid for all component. ऐसा two I represent है, एक circle है and other one is what? Rectangle. चलो circle का देखते, where will get position of centroid, you must know reference axis. अभी इसका अगर reference axis देखो, reference axis I'll represent somewhere here. ये suppose आपका ये reference है, this one is what? X axis. And y axis is somewhere here, it is just touching this circle. Is suppose y axis, this is y axis. Now as these are x and y axis, so here say this is y axis and this is x axis. You know centroid is located where? At center. So distance of centroid from y axis, so this is a horizontal distance, this will be your x bar. X bar क्या रहता है? Horizontal distance of centroid from y axis, and distance of centroid, vertical distance of centroid from x axis, ये आपका हो जाएगा y bar. Correct. That means x bar distance easily you can get. तो center of circle है तो distance किधर आएगा भाई साहब? ये आएगा आपका r distance. y bar कितना आ गया? r. Correct. बट ऐसा फॉर सर्कुलर लेमिना x बार इक्वल टू आर एंड y बार इक्वल टू आर, ऐसा बाहट नहीं करने का. बच्चे लोग ऐसा आग बंद करते, x बार इक्वल टू आर, y बार इक्वल टू आर, ऐसा नहीं करने का. x एंड y एक्सिस किधर है डिपेंड है ना. सपोज इफ आई चेंज पोजीशन ऑफ रेफरेंस एक्सिस, मैंने इधर आपका x एक्सिस इधर डाल दिया, सपोज ये x एक्सिस,
एंड ये y एक्सिस, तो आपका भी x बार y बार रेडियस रेडियस नहीं आएगा, क्योंकि आपका सेंट्रोइड इधर है, आपका x एक्सिस इधर है, इधर y एक्सिस है। x बार y बार क्या आएगा अभी, सेंट्रोइड लाइज वेयर ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस से तो डिस्टेंस ही नहीं है पॉइंट सी का, बिकॉज सी इटसेल्फ लाइज वेयर ऑन y एक्सिस। तो आपका ये केस में क्या हो जाएगा, x बार 0 एंड सेंट्रोइड इज लाइंग ऑन x एक्सिस। अभी ये x y एक्सिस नहीं है, ये सपोज दिस न्यू पेयर आर रिप्रेजेंटेड, तो आपका y बार भी 0 हो जाएगा, बिकॉज सेंट्रोइड लाइज वेयर ऑन x एक्सिस। करेक्ट, क्लियर, किसी को कुछ डाउट, x एंड y 0, यस मोहम्मद फैजान, करेक्ट, एक्स एंड वाई बोथ 0। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि सर्कुलर लैमिना के लिए आपका एक्स बार वाई बार आर आर आता है, ऐसा बाहर नहीं करने का। ट्राई टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड विल नॉट चेंज, आपका सेंट्रोइड सर्कल के सेंटर में ही है, वो इधर उधर शिफ्ट नहीं हो जाएगा। एक्स वाई एक्सेस शिफ्ट हो सकते हैं ना, अभी आप मैं पहले बॉटम मोस्ट लोकेशन पे ले गया, अभी सेंटर से पास हो, एक्स एक्सिस किधर भी हो सकता है। दैट मीन्स from that reference axis what is the distance of centroid, that one you have to identify। आपको पता क्या रहना चाहिए इसमें, सेंटर और सेंटर ऑफ सर्कल मीन्स पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड। सर्कुलर लैमिना रहेगा तो सेंट्रोइड किधर आता है, सेंटर, सिंपल, इतना ही ध्यान में रखना है, राइट। अभी उसका डिस्टेंस निकालना है y एक्सिस से, डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से एज ए एक्स बार एंड y बार, क्लियर। तो ये डिस्टेंस निकालना इंपॉर्टेंट है। पोजीशन आपको दिमाग में बैठ जाएगा आराम से, रेक्टेंगुलर लैमिना है तो आपका पोजीशन किधर है, सेंटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके। सर्कुलर लैमिना है तो सेंट्रोइड किधर, सेंटर ऑफ यू कैन से सर्कल। बट पोजीशन ऑफ एक्सेस अगर चेंज किया तो यू शुड नॉट बाय रेक्टेंगुलर लैमिना b/2 एंड h/2, b/2 एंड h/2, ऐसा नहीं होता है। आप कैसा ध्यान में रखने का, उसके सेंटर में है, राइट, एंड देन विल ट्राई टू फाइंड आउट डिस्टेंस। अभी सपोज आई विल मूव टू नेक्स्ट पेज नाउ, देखो और थोड़ा मजा करते हैं, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू विल नेवर गेट रॉन्ग आंसर व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम, किधर भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सपोज अभी सपोज एक ना इधर ऐसा, ये वाई एक्सिस देखो, केयरफुली देखो, एकदम केयरफुली, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस, फाइन, यस, ये हो गए एक्स एंड वाई एक्सिस। अभी ना आप थोड़ा थोड़ा आंसर भी देते जाओ, अभी हो गया है ना, चलो एक्स वाई। नाउ आई विल रिप्रेजेंट व्हाट, कि ये सपोज आपका ये रेक्टेंगुलर लैमिना, दिस इज व्हाट, रेक्टेंगुलर लैमिना, चलो ये अगर रेक्टेंगुलर लैमिना। नाउ हियर कि ये जो रेक्टेंगल है ना, इसका बेस 10 मीटर है, ओके। ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मींस बेस ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 10, एंड वर्टिकल डायमेंशन ये आपका है सपोज हाउ मच, ये आपका 6 मीटर, ये कितना है, 6 मीटर, है ना। सिंपल, वन रेक्टेंगल ऑफ बेस इक्वल टू व्हाट, 10 मीटर, हाइट इक्वल टू व्हाट, 6 मीटर। नाउ इधर को डिस्टेंस देते हैं कि बाबा एक्स एक्सिस से ये जो एज है ना रेक्टेंगल का, हाँ दिस इज हाउ मच, ये कुछ तो ये 5 मीटर है, एंड ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना दिस, हाँ ये समथिंग डिफरेंट है, चलो 7 मीटर लेते हैं, है ना, क्लियर। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन what is the value of x bar and what is value of y bar। अभी x बार मीन्स व्हाट, आपको रिकलेक्ट होना चाहिए, x बार क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम y एक्सिस, हाँ 10 10, एक 8, x बार 10, y बार, बच्चे ब्रिलियंट, फर्स्ट क्लास, यस यस, देखो एकदम सिंपल, बच्चे लोग समझ गए, अरे वाह फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है। देखो ये सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड है ना, अभी ये जो सेंट्रोइड है दिस वन इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस एज, आपको डिस्टेंस पता है, ये कितना है भाई साहब, ये आपका 5 मीटर है, ये कितना रहेगा, तो हाफ ऑफ हाइट, ये कितना आ गया 3 मीटर। आपको ना वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, देखो ये कितना आएगा, ये एक्स बार कितना हो गया, एक्स बार 5 + 5, ये हो गया ना 5 + 5 कितना गए 10 मीटर। वाई बार कितना हो जाएगा, तो ये आपका वाई बार डिस्टेंस ना, ये वाला
तो आपका y बार जो है दिस वन इज व्हाट, ये 3 है, इधर 7 है, 3 + 7 10 मीटर। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट क्लास। ऐसा तो आंसर देंगे तो बहुत मजा आएगा। x बार y बार ये दोनों समझ में आएगा। हाँ अभी थोड़ा और मजा करते हैं। हाँ चलो मजा करेंगे। हाँ ये ऐसा करेंगे ना, ये एकदम सिंपल टॉपिक हो जाएगा। एनी टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स उसमें ना थोड़ा ना कॉन्सेंट्रेट करके ना, वो once will understand then it becomes very easy। अभी देखो। चलो वन मोर। हाँ नाउ सी हियर, वापस रेक्टेंगल रेक्टेंगल, यस यस रेक्टेंगल डालिए। नाउ अभी अभी आंसर प्रॉपर देने का। अभी चांसेस है मिस्टेक करने का, बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं छोटा छोटा, ऐसा एकदम सीधी मिस्टेक। ये देखो। चलो इसको भी 10 मीटर करते, एंड दिस वन अगेन 6 मीटर, ये लिया, चलो 8 मीटर ले लेते इसको, ये कोई थोड़ा बहुत डिस्टेंस लेते, चलो 3 मीटर। हाँ ये देखो, 3 मीटर, 10 मीटर, यस ये 6 मीटर एंड ए 8 मीटर है ना। चलो एक्स बार निकाल सकते हैं क्या? चैट बॉक्स में डालो तो आंसर। एक्स बार 11। हाँ एक्स बार, पहले एक्स बार खा लिया, पहले एक्स बार का मजा लेते। एक्स बार 11। हाँ ये ईशा पाटिल ने आंसर करेक्ट दिया। सब ने सब 11 11 11 11 नहीं है, मैग्नीट्यूड करेक्ट है। हाँ ईशा गुड। हाँ ये देखो एक्स जो डिस्टेंस है ना, ये आपका माइनस आएगा। हमने आपको क्वाड्रेंट पहले बताया था। ये क्या होता है ना, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, बट आपने ये ऐसे छोटा मिस्टेक हो, प्लस का माइनस का मिस्टेक हो गया ना, पूरा आंसर स्पॉइल हो जाता है, आंसर रॉन्ग आता है आपका। ये साइड में गया ना भाई, सेंट्रॉइड इधर गया ना, दिस इज ऑन लेफ्ट साइड, डेफिनेटली आपका ये एक्स नेगेटिव रहना चाहिए। ये आपका एक्स बार है ना, तो दिस एक्स बार इज व्हाट, ये आपका माइनस, एंड 8 + 3 ऐड करने में कुछ नहीं लगता, एकदम सिंपल होगा। यस मजा आ रहा है, बहुत रिस्पॉन्स फर्स्ट क्लास है। एक्स बार, एक्स बार -5 कैसा है रे चैतन्य? अरे नहीं रे, एक्स बार ऐसे -5 नहीं आता। देखो इधर, इधर देखो, अरे 8 और 3, ये डिस्टेंस देखने का एक्चुअली या प्रैक्टिकली, ऐसा नहीं कि एक साइड में माइनस किया इसमें तो ये ऐसा नहीं। ये देखो 8 आपका इधर डिस्टेंस है चैतन्य, लिसन, ये देखो आपका 8 लेफ्ट साइड में गया इधर तक। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? ये देखो ये कितना चैतन्य, ये 3। अभी 8 और 3 एडिशन हो जाएगा ना, क्योंकि सेंट्रोइड इधर है, करेक्ट है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो एक्स बार मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड। ओके मोहम्मद, कुछ प्रॉब्लम होता है मोहम्मद, मोहम्मद ये देखो, हाँ 8 मीटर लेफ्ट साइड में है, ये एज है ना, ये एज आपका 8 मीटर पे है। सेंट्रॉइड आपका ये बेस इसका 6 है ना, तो ये आपका 3 मीटर पे आएगा ना सेंट्रॉइड। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 एंड 3 11 हो गए, बट इट इज वेयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एक्सिस, एंड नेगेटिव साइड में गए ना एक्स एक्सिस, तो -11। हाँ एंड वाई बार सिंपल है कंपेरेटिव, ये 3, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा देखो तो, ये 10 का हाफ 5 मीटर, तो आपका वाई बार हो गया 3 + 5 8 मीटर। चलो दिस वन क्लियर, डन, यस फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ ऐसा करेंगे तो मस्त मजा आएगा। यस यस गुड। मोहम्मद नहीं समझा? हर अंडरस्टूड, ओके। अरे 2 मोहम्मद है, ठीक है ठीक है, देखते हैं। हाँ समझ जाएगा सर। फर्स्ट वाला में अरे एक्स बार ही इंपॉर्टेंट है। देखो 8 + 3 डिस्टेंस है एंड इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इधर आपका क्या रहता है? माइनस रहता है एक्स, एंड वाई रहता है प्लस, इसलिए वो माइनस हो जाएगा। एंड डिस्टेंस आपको ऐड करना है खाली वाई एक्सिस से। देखो 8 इधर का 8 हो गया, एंड 3, 8 एंड 3। हाँ ठीक है चलो। अभी ना सपोज इफ आई रिप्रेजेंट रेक्टेंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपको डिस्टेंस निकालना आ जाएगा आराम से। आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बना, तो आपका एक्स एक्सिस जो आंसर आएगा ना, एक्स एक्सिस एक्स बार, आपका निगेटिव कंफर्म रहेगा, है ना। ये आपका एक्स बार इधर निगेटिव रहेगा इफ इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड वाई बार जो है ना, वाई बार दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, राइट, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। मोहम्मद कैफ,
क्या प्रॉब्लम है, विच एक्सप्लेनेशन यू वांट, एक्स बार की वाई बार? ये सिंपल ना, सेकंड क्वाड्रेंट का ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का समझ में आया मोहम्मद? फर्स्ट क्वाड्रेंट का समझ में आ रहेगा ना? तो देखो एक्स बार क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड। देखो मोहम्मद, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, ये देखो इधर से, अभी आपका ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से अगर ये डिस्टेंस निकालना है, ये सेंट्रॉइड का, ये हॉरिजॉन्टल है ना, आपको ये डिस्टेंस निकालना है। अभी ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो आपका रेक्टेंगल का बेस 6 मीटर है, तो सेंट्रॉइड किधर रहेगा, 3 मीटर पे है ना, एंड ये जो एज है ये कितने डिस्टेंस पे, 8 मीटर पे। वाई एक्सिस पे खाली डिस्टेंस देखने का है, सेंट्रॉइड का कितना है, 8 एंड 3 है ना, 8 एंड 3 कितना हो जाएगा, 8 एंड 3 11। लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस है, निगेटिव हो जाएगा, -11 है ना। वाई बार अगर देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, फिर ये 10 है, तो आपका ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस का हाफ हो गया, इस कितना हो जाएगा 5। अभी ये हो गए 3, ये हो गया 5, वाई बार कितना आएगा 8। अब वो एक्स एक्सिस है तो आपका वाई बार पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल, नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, आ जाएगा। हाँ, नाउ मोहम्मद समझ में आया कि नहीं? आएगा, और एक दो केसेस लेंगे ना तो आ जाएगा, अगर नहीं समझ आया, आई थिंक अभी समझ में आना चाहिए। हाँ, अभी देखो, हाँ अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना, इजी है कंपैरेटिव, या ये इजी है। अभी देखो, आपका अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी सेंट्रॉइड जाता है तो आपका एक्स बार निगेटिव पे कॉन्सेंट्रेट करने का, वाई बार इज ऑल्सो निगेटिव, ठीक है। एंड सेंट्रॉइड अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, इधर एनीवेयर इधर, तो आपका कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, एक्स बार क्या आना चाहिए, ये पॉजिटिव आएगा, एंड आपका वाई बार क्या आएगा, वाई बार निगेटिव आएगा, वाई बार निगेटिव, ठीक है। एक्स बार पॉजिटिव, जो भी डिस्टेंस आएगा, बट यू हैव टू राइट पॉजिटिव, and y bar whatever be the distance will get, will write with minus sign, ठीक है। तो this is for rectangular lamina। अभी rectangular lamina simple। now we'll move to next one more component। अभी next component equal to here क्या करते हैं, sphere। ये जो है ना सब, while solving problem mostly you will get wrong answer for this component। difficult नहीं है, बट समवेयर विल मेक मिस्टेक इन हरी, समवेयर। ये सपोज आपका एक ट्रायंगुलर कॉम्पोनेंट है, ट्रायंगुलर लेमिना, तो ये आपका ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल, एंड हियर 1 मिनट, हाँ ये आपका ट्रायंगुलर लेमिना, ठीक है। नाउ ये ट्रायंगुलर लेमिना के लिए इधर क्या करते हैं ना, दिस वन एक्सिस जो है, ये आपका एक्स एक्सिस, एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। again any component is given, normally base and height जो है, that one will take what, height as h है ना, base as b। ये जो distance है, this one is height h, okay, and इसका जो base है, ये y axis आ गया, इसका जो base है will represent here by b, ये होगा आपका b, base b and height h, okay fine। तो आपको ये पता है भी कि ये अगर रेक्टेंगुलर लेमिना है ना ऐसा, तो ये इसका सेंट्रॉइड सेंटर पे रहता है ना। ये अभी क्या किया ना, इसका हाफ पार्ट जो है, इसका ना हाफ पार्ट रिमूव किया, ये पार्ट रिमूव किया, ये निकाल लिया, अभी आपका लेमिना इतना ही है ना, तो आपका सेंट्रॉइड है ना इधर से थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा ऐसा, दैट मीन्स दैट विल मूव वेयर, तो ये जो 90 डिग्री है ना इसके नियरर आ जाएगा। पहले ये आपका हाफ हाफ था, रेक्टेंगल के लिए ये आपका b/2 था, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा ना, तो ये 1/3 होता है। ये जो था रेक्टेंगल के लिए ये कितना था, हाफ ऑफ हाइट, ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, 1/3 ऑफ दैट हाइट। नाउ हियर आई विल रिप्रेजेंट सेंट्रॉइड, ये अगर आपका सेंट्रॉइड है तो इसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, ये आपका डिस्टेंस एक्स बार, ये डिस्टेंस दिस इज व्हाट, वाई बार। तो ये जो एक्स बार है हॉरिजॉन्टल है, मीन्स बी के टर्म में आएगा, बी का 1/3 मीन्स b/3, एंड वाई बार हो जाएगा h/3। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि 1/3 एंड 1/3 कहाँ से है, दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट एंगल ट्रायंगुलर लेमिना के लिए ना ये एंगल ढूंढने का 90 डिग्री की तरह, the two sides which are mutually perpendicular to each other, from that two sides centroid is where b/3 and h/3।
the horizontal distance of centroid b by 3, vertical distance of centroid h by 3. किधर से? From the two sides which are mutually perpendicular to each other, है ना. तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेस जो है if they are represented at different location, so what is the problem? How will get? See here. Now, 1 minute. So here if I'll take one triangular component, आपको ध्यान में क्या रखना है? 1/3 of base, 1/3 of height. From where? From the two sides which are mutually perpendicular to each other. अभी suppose ये triangular lamina है, this is the triangular lamina. Okay, ये आपका 90 डिग्री. I'll take some dimension. ये suppose 9 मीटर लिया simple, and ये आपका मैंने ले लिया ये 12 मीटर है suppose, 12 मीटर and 9 मीटर. Okay, 9 मीटर and 12 मीटर. फाइन. अभी आपका एक्स एंड वाई एक्सिस इंपॉर्टेंट. एक्स वाई एक्सिस ना जैसा ये स्टैंडर्ड केस में दिया है ना, ऐसा नहीं दिया है. हाँ, ये कैसा दिया है देखो. हाँ, ये आपका एक्स एक्सिस जो है ना, ये इधर से स्टार्ट होगा. हाँ, ये एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस जो है ना, ये भी इधर से दे दिया. हाँ, अभी कैसा करने का? अभी आपको ना पोजीशन वंस यू नो कि हाँ ट्रायंगल का एक्स वाई एक्सिस इधर इधर रहता है ना, तो आपका x3y4 1 मिनट आई एक्सप्लेन गड़बड़ मत करो. ये देखो, इसका जो सेंट्रोइड है, देखो ये फर्स्ट फिगर में आपका 90 डिग्री वाला साइड देखो, दिस टू साइड्स आर म्यूचुअली, तो ये आपका इधर 90 है. आपका ये जो सेंट्रोइड रहेगा ना, ये सेंट्रोइड आपका ये जो डिस्टेंस है, दिस वन इज 1/3 ऑफ 9 मीटर, ये 3 मीटर हो जाएगा. एंड ये जो है दिस वन इज 1/3 ऑफ 12 मीटर, एंड ये डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हैं, बट ये एक्स बार वाई बार नहीं है. हाँ, ये एक्स बार वाई बार नहीं है, बिकॉज एक्स बार वाई बार कहाँ से मेजर करते हैं? बाप रे बाप. हाँ, ठीक है, जम रहा है थोड़ा थोड़ा. देखो इधर, तो yes, most of the students have given correct answer. Good, congratulations. Yes, you are brilliant. See here, अभी आपका y एक्सिस इधर है, तो आपका x बार ना 3 मीटर नहीं आएगा. आपका x बार है ना, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज योर x बार है ना, ये x बार आएगा. आपका टोटल ये 9 मीटर है जी, ये 9 है, एंड ये 3 है, तो आपका x बार क्या हो जाएगा? 6. करेक्ट है? 9 माइनस लेफ्ट साइड में गया ना, ये y एक्सिस है ना, एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो आपका एक्स बार क्या हो जाएगा? माइनस हाउ मच? टोटल 9 है, इधर से 3 है, तो कितना हो जाएगा? और यू कैन से ये जो डिस्टेंस है, ये 1/3 ऑफ बेस है, तो ये 2/3 हो जाएगा ना. 2/3 ऑफ 9 करो, 6 मीटर. बट लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, तो आपका एक्स बार -6, वो इंपॉर्टेंट है. वाई बार सिंपल है. वाई बार तो पहले जो था सेम अभी भी इधर आ रहा है, नहीं, ये आपका वाई बार हो जाएगा. वाई बार इज व्हाट? 4 मीटर. क्लियर बच्चे लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट क्लास. यस. अभी ट्रायंगल का और थोड़ा मजा करते हैं कि ट्रायंगल में ना नॉर्मली क्या होता है, आपको इजी लग रहा है, एग्जाम में जब ये करते हैं ना, तो क्या होता है ना, डिफिकल्ट हो जाता है. मीन्स किधर भी प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाएगा ना, आंसर रॉन्ग होना, तो वो मार्क ही नहीं देता है, 0 मार्क डाल देता है. ये एक बार एक अगर निगेटिव डालेंगे ना, तो व्हाट यू टू स्टडी बेसिकली, ऐसे छोटा छोटा ये जो सिंपल कंपोनेंट जोड़ के ना, व्हाट यू टू डू, एक कंपोजिट लैमिना बनेगा. एंड देन यू हैव टू फाइंड, उसमें कंपोनेंट ज्यादा रहेगा ना, तो यू हैव टू फाइंड आउट एक्स वाई व्हिच कंपोनेंट. एक कंपोनेंट में एक प्लस माइनस का अगर मिस्टेक होता है ना, तो सब आंसर रॉन्ग हो जाता है, डिफिकल्ट होता है. इसलिए ना कॉन्सेंट्रेट करने का. तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि फॉर ट्रायंगुलर लैमिना देयर इज अ पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड b/3 एंड h/3. किधर से? फ्रॉम द टू साइड्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. विल मूव टू नेक्स्ट पेज. अभी देखो, हाउ एक्स बार इज -6. देखो बेटा इधर, ये देखो. हाँ, देखो ट्रायंगल का एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. सी हियर,
ट्रायंगल का बेस कितना है 9 मीटर है ना, ये 9 मीटर है, दिस इज व्हाट, ये 9 मीटर। ओके, अभी ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड किधर रहता है, तो आपका ना ये साइड देखो, ये 90 डिग्री एंगल इधर है ना, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये 90 डिग्री। इधर से 1/3 ऑफ बेस, 1/3 ऑफ हाइट। आपका अगर एक्स डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस 3 मीटर क्लियर, ये आपका 3 मीटर आएगा। बट कहाँ से, ये आपका दो साइड से ना परपेंडिकुलर, तो इधर से 3 आ गया एंड ये वर्टिकल आपका 4 हो गया। बट आपका एक्स बार डिस्टेंस 3 मीटर नहीं है, x bar is not equal to 3 मीटर। what is the reason? x bar डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं बच्चे लोग, x bar is measured from where, किधर से मेजर करने का, from y axis, y axis से मेजर करने का। अभी ये अगर सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है, y axis इधर है, तो ये डिस्टेंस आपका x बार है ना। अभी तो एकदम बहुत सिंपल है, एकदम देखो, ये आपका ये कितना है रे भाई, ये 3 मीटर है, टोटल कितना है 9, तो ये एक्स बार प्लस 3 9 मीटर होना चाहिए ना। तो आपका एक्स बार कितना आएगा, डिस्टेंस मिलेगा 6, बट वो लेफ्ट साइड ऑफ एक्सिस है, तो इसके लिए माइनस डाल दिया, बिकॉज दैट इज इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये एक्स नेगेटिव होता है ना। क्लियर? अरे ग्लैडीज, अंडरस्टूड, गुड 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 गुड, यस अंडरस्टूड, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं समझेगा, देखो एक आधे स्टेप में इफ विल नॉट अंडरस्टैंड देन ऑल्सो नॉर्मली आई विल रिपीट इट ऑन 2-3 टाइम्स, बिकॉज I know I can understand which part will not understand and which part will understand properly। कि देखो टक्कल हो गया ना पढ़ाते पढ़ाते, तो क्या होता है ना, परफेक्ट पता चलता है कि हाँ ये नहीं समझेगा बच्चे लोगों को, उसको उल्टा पलटा घुमा घुमा के ना बाद में पूरा एकदम दिमाग में घुस जाएगा। तो नॉर्मली इफ यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एट एनी इंस्टेंट, so I'll explain you if you'll ask me, but still if you'll not understand, then also you will understand later on, because we'll solve that much number of problems and I'll explain you that much number of times, so that कि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्या चाहिए बच्चों, सेंट्रॉइड का डेफिनेशन है ना, सेंट्रॉइड का डेफिनेशन क्या है रे, centroid is defined as a point in the lamina। नोट करो अगर पाई चाहिए तो, centroid is defined as a point in the lamina through which total area of the lamina, through which total area of the lamina is assumed to be concentrated, is assumed to be concentrated। क्या लिखा है, रिपीट करता हूँ एक बार। सेंट्रॉइड इज डिफाइंड एज अ पॉइंट इन द लैमिना थ्रू विच टोटल एरिया ऑफ द लैमिना इज assumed टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, दैट मीन्स एक इमेजिनरी पॉइंट है, हाँ उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दैट पॉइंट normally located where, at the center of lamina, simple। or one more step, if lamina is symmetrical about one axis, centroid lies where, on axis of symmetry। हाँ, फिर if lamina is symmetrical about more than one axis, then more than one axis रहेगा तो point of intersection represent centroid, है ना। गुड, अरे लिखा नहीं करे बाबा, सेंट्रॉइड इज डिफाइंड है, देखो वापस रिपीट करता हूँ, लिखो फटाफट जिसको नोट करना है। सेंट्रॉइड इज डिफाइंड एज अ पॉइंट, सेंट्रॉइड इज डिफाइंड एज अ पॉइंट इन द लैमिना, इन द लैमिना through which total area of the lamina, through which total area of the lamina is assumed to be concentrated, through which total area of the lamina is assumed to be concentrated। Okay,
चलो अभी ट्रायंगल का एक दो केसेस लेना है. चलो see here. I'll move to now next page. Okay, done. Happy? Yes. See here. हाँ अभी देखो. Now suppose this one is what? सब आएगा. सुनो एक स्टेप आपको सब मिलेगा. जस्ट वेट. राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा तो क्या आएगा, है ना. अभी ये सपोज आपका एक्स एक्सिस. हाँ सब कुछ मिलेगा बच्चे लोग, सब कुछ सब एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप. अभी आज का पहला दिन है ना, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो ना हजम नहीं होता है, फिर प्रॉब्लम होता है. जितना समझता हूँ उतना बराबर डालता हूँ, फिर अपना ट्रायंगल का वैरायटी सब आएगा. ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस. ठीक है, एक्स एंड वाई. अभी आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना है. व्हाट इज एक्स बार एंड व्हाट इज वाई बार. which lamina? Triangular lamina. Simple. Right angle triangular lamina. बाद में देखते और ट्रायंगल्स का पार्ट होगा. अभी सपोज एक ट्रायंगल है सी है. 1 2 3 अगर ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल. नाउ ये जो डायमेंशन है दिस वन, ये 6 मीटर. देखो आपको ना कैलकुलेशन के लिए कुछ मैं काम ही नहीं, कैलकुलेटर वगैरह भी नहीं लगेगा. एकदम डायरेक्ट एकदम सिंपल डायमेंशन है. एक 6 मीटर लिया, एक 9 मीटर लिया. ये जो है ना ये 90 डिग्री है. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना दिस इज गिवन. ये बाबा ये आपका है 4 मीटर. हाँ ये जो है ना ये 2 मीटर है. ये कितना है 2 मीटर. क्लियर, डायमेंशंस क्लियर. अभी बताओ एक्स बार कितना आएगा. पहले एक्स बार, देन वाई बार. If it take 1 minute more, then also no. Think properly. आंसर परफेक्ट आना चाहिए. If it takes time, then also no problem. टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा तो चलेगा. एक्स बार 6 आशुतोष. या राइट 11/3. या टक 4 + 3 ये 7. 8. सोचो बच्चे लोग, सोचो. 5 6 7 8. अरे बहुत मजा कर रहे हैं. हाँ अभी 8 आ गया बीच में, अभी वापस 6 है. जो कार्तिक 6, यस 6. अच्छा थोड़ा इफ इट टेक्स मोर टाइम, हाँ देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम. संस्कृति 8, मोहम्मद 10. अब मोहम्मद क्या किया रे, 4 + 6 डायरेक्ट ऐड कर दिया. नहीं रे भाई, ऐसा नहीं करने का. हाँ ठीक है चलो सी हियर. हाँ अभी एक्सप्लेन करता हूँ. सी हियर एकदम सिंपल है. आपको बेसिक क्या बताया है, किधर रहता है सेंट्रॉइड. पहले ना एक्स वाई एक्सिस पे मत सोचो. फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल. किधर रहता है राइट एंगल ट्रायंगल, किधर रहता है 1/3 है ना b/3 एंड h/3. हाँ b/3 एंड h/3. किधर से, फ्रॉम द टू साइड्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इधर देखो ये 90 डिग्री है. मोहम्मद इधर देखो प्रॉपर. हाँ जिसको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था ना, इधर देखो. हाँ समझ में आ जाएगा. अब ये 90 डिग्री है परफेक्ट. आपका ये दो साइड से डिस्टेंस आपका 1/3 रहता है. यानी ये जो रहेगा ये कितना रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ना. तो हॉरिजॉन्टल ये बेस कितना है आपका, ये बेस है ना ये 6, ये आपका 2 मीटर होना चाहिए ना. करेक्ट. ये 2 मीटर सबको समझ में आ रहा है. 1/3 ऑफ बेस. और ये जो है ना ये डायमेंशन ये आपका वर्टिकल है ना, तो ये आपका हाइट है वर्टिकल, ये 9 है, तो ये आपका 3 मीटर होना चाहिए. देखो ये आपका लोकेशन एक बार आना चाहिए, फिर डिस्टेंस तो आराम से निकाल सकते हैं. सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी निकाल लेगा. फिर आपको ना लोकेशन मिलना चाहिए बस. ये लोकेशन समझ में आ गया. अभी इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस ये रहता है ना एक्स बार, इधर से एक्स बार रहता है. अभी कैसा निकालेगा, ये देखो इधर से ये 2 मीटर था, ये कितना बचेगा, ये वाला टोटल 6 है ना, ये 4 रहेगा ना. इधर से 2 है तो इधर 4 है, यानी ये इधर 4 है. कितना हो गया रे 8 मीटर. बहुत कम बच्चों ने 8 मीटर का आंसर दिया. 6 5 7 10 9 ऐसा नहीं. हाँ अभी 8 मीटर. ऐसा वाई बार देखो, ये सेंट्रॉइड का ये डिस्टेंस वाई बार है आपका, है ना. ये वाई बार परफेक्ट. ये वाई बार ये ऑलरेडी इधर 2 है,
बट इसके ऊपर कितना लेना है, ये आपका 3 गया ना, ये 3 गया तो ये कॉर्नर से ये कितना बचेगा भाई, ये 6 बचेगा ना रे, 6 और 2 कितना होगा भाई बा, 8 मीटर है ना। ए दोनों से आ गया मजा, अभी सबको समझ में आया, मोहम्मद समझ में आ गए, यस, अंकिता, ईशा, कार्तिक, हाँ, एक्स एंड वाई दोनों 8, यस, फर्स्ट क्लास। अच्छा ट्रायंगल रहेगा ना, केयरफुली देखने का, ऐसा कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाता है, हाँ खड़क करके आंसर हो जाता है, बहुत डेंजर रहता है ऐसा सीन में। हाँ, इंजीनियरिंग में होता है वैसा, थोड़ा अगर समझ में आना चाहिए लोग यार, तो मिस्टेक किधर होता है वो पक्का ध्यान में रखने का, किधर मिस्टेक हो सकता है, वो अगर समझ में आ गया ना फिर कुछ नहीं है, फिर एकदम सिंपल है। चलो अभी देखो, हाँ अभी वन मोर, ये ट्रायंगल का ना आपको एटलीस्ट 3 क्वाड्रेंट में खेलने का इसके साथ में, तो ना एनी प्रॉब्लम इसकी यूनिवर्सिटी एग्जाम का अगर एकदम प्रॉब्लम एकदम सिंपल, एकदम सिंपल हो जाएगा। हाँ सब प्रॉब्लम का ऐसा धुआं धुआं कर देने का, एकदम देखते ही आंसर आना चाहिए फर्स्ट क्लास। ये देखो 6, नहीं ना बट डायमेंशन चेंज ही नहीं करते, चलो 6 9 पे मजा करते, ये देखो 6 9 आ गए, चलो ये डिस्टेंस 5 मीटर है ना, हाँ ये कितना रे भाई, चलो ये 2 मीटर, अभी ना पहले आंसर बताओ मुझे, मस्त मस्त मजा आता है। हाँ एक करेक्ट था, थोड़ा 1 मिनट ज़्यादा लो, गड़बड़ नहीं करने का, एकदम किधर नहीं जाने का है, सब बंद है बाहर, किधर बाहर घूमने के लिए अलाउड नहीं है, रिस्की है, बाहर नहीं घूमने का, किधर जाना ही नहीं है, तो अपने को एक बार वाई बार ये 2 मिनट ज़्यादा लगेगा ना, क्या फर्क पड़ता है, आंसर करेक्ट आना चाहिए ना। ये देख ये देख, ऋतुज, ऋतुज 7, कार्तिक, कार्तिक 9, सोहम -9, यो -9, -9, -7.5, शोएब खान -9, ईशा, पूजा -9 and 5, -9, -9 इज करेक्ट आंसर है, -9 आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट आ रहा है। एक किसी को -9 में प्रॉब्लम है क्या, -9, -9 आता है, दिख रहा है -9, थोड़ा देखने का, यश चावड़ा, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है देखते, एक्स बार एक को नहीं समझ आए, ये देखो एक्स बार पहले, चलो वाई बार सिंपल है रे, वाई बार 5 आ जाएगा, वाई बार का प्रॉब्लम नहीं, देखो एकदम सिंपल है, एक्स बार इज, देखो एक्स बार देखो, किसको नहीं समझ में आता अपन चेक करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रहता है, राइट एंगल ट्रायंगुलर लेमन में क्या ढूंढने का, 2 साइड्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का, ये देखो ये इधर है, ये है, दीज आर द 2 साइड्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इधर से आपका जो सेंट्रोइड आएगा ना, ये सेंट्रोइड, ये डिस्टेंस 1/3, किसका 1/3, ये बेस है ना, ये 2 मीटर हो गया, एक ही डिस्टेंस है। अरे भाई ये अगर 2 मीटर है तो ये सेंट्रोइड का डिस्टेंस इधर से निकालना है, ये एक्स बार निकाल सकते हैं। देखो टोटल ये कितना था भाई, ये कितना है ना, 6 5 11 है ना, 11 है, इसमें से 2 ही गया ना, तो 9 आना चाहिए। बट ना ये आपका पॉइंट जो है ना, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है ना, वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड में, इधर एक्स एक्सिस, इधर ये 0 0 रहता है ओरिजिन, इधर एक्स पॉजिटिव है, इधर एक्स नेगेटिव होता है ना, ये इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ग्राफ बनाया रहेगा आपने, तो ये एक्स बार आपका -9, समझ में आया कि नहीं, यस, समझ में आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, ऐसा समझ में नहीं आ रहा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हाँ ऐसा है, पत्थर को भी पसीना आना मांगता है, यस, मजा आ रहा है सर, वाह, यश को तो मजा भी आ रहा है, एक और सम सर, एक नहीं रे, पूरा मैकेनिक्स पढ़ाने का है, एक सम से क्या होता है, लेकिन मजा आएगा। हाँ अरे वाई बार सबको समझ आ रहा है कि नहीं, ये देखो ये वाई बार इजी है, ये जो डिस्टेंस है कितना, टोटल 9 है ना, तो ये आपका 1/3 में 3 हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका वाई बार, तो ये 3 है और उसका नीचे ये 2 है, तो ये आपका 5 मीटर हो जाएगा ना, वाई बार 5 मीटर, वाई बार 5 मीटर हो जाएगा, एक्स बार -9 मीटर हो जाएगा ना, करेक्ट, प्रॉब्लम है नहीं, फर्स्ट क्लास। चलो और एक ट्रायंगल का एक लेते है ना, समझ गया आशुतोष, धन्यवाद दादा, यस,
हाँ अभी देखो नाउ और एक ट्रायंगल बनाते हैं ना, ठीक है। अभी ना देखने का, कॉन्सेंट्रेट करने का, ये आपको फर्स्ट पार्ट टू साइड्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर उधर से स्टार्ट करने का, वो पॉइंट लोकेट करने का, एंड देन यू फाइंड आउट डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, हो जाएगा काम तमाम, है ना। ये देखो वापस ऐसे ही ट्रायंगल डालता हूँ, किधर भी गोची नहीं होना चाहिए, हाँ फर्स्ट क्लास आंसर आना चाहिए। ये देखो ये वापस 6 मीटर, बहुत अच्छा नंबर है ना, 6 मीटर 9 मीटर बहुत प्यारा है, इसलिए मैं ऐसे ये देखो, हाँ 6 मीटर, ये 9 मीटर, 6 मीटर एंड 9 मीटर, ओके यस। अभी ना ये जो है ये 5 मीटर, हाँ यस। ये कितना रे, इसको भी देते हैं ना थोड़ा सा, चलो 5 से कम है ना यार, तो हम 4 मीटर करते हैं इसमें, एक्स बार। अभी ना पहले आंसर बता, बहुत मजा आता है, हाँ रॉन्ग आंसर नहीं देने का, करेक्ट देने का। -9 -9 -19 -9 -10, अब शुद्ध -19 आता है, इधर से आएगा रे -19। शोएब चेक करो, शोएब, यस यस -9 -10 है, मजा आ रहा है अभी तो। -9 है तो 1 मिनट चेक करने दो, हाँ -9 करेक्ट है एक्स बार, वाई बार देखो 4 एंड, हाँ माइनस, दोनों माइनस, हाँ मोहम्मद 11 नहीं आता है, चेक करो, 4 एंड 6 हो जाएगा ना बाबा, मोहम्मद जी 4 + 6, हाँ उसका 2/3 हो जाएगा ना, 9 इधर से गया तो ये देखो, ये अगर सेंट्रॉइड इधर डालेंगे ना तो ये डिस्टेंस आपका 2 मीटर, हाँ, और ये कितना हो गया, ये 3 मीटर, हाँ, तो 2 मीटर हॉरिजॉन्टल है, हाँ ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो है ना, ये 2 मीटर, हाँ ये 2 1/3 ऑफ 6, ये जो आएगा ना वर्टिकल, ये 1/3 ऑफ 6, 1/3 ऑफ 9, ओके। तो आपका ये जो डायमेंशन बचेगा दिस वन, ये आपका एक्स बार ना, सिंपल है, नॉट डिफिकल्ट, ये एक्स बार। एक तो पहले नेगेटिव आना चाहिए कंफर्म, अभी जोड़ो कितना है, 5 + 6 कितना होता है 11, इसमें से 2 जाएगा है ना, तो 9 हो जाएगा, या इधर से 2 गया तो ये कितना बचेगा रे, ये 4 बचेगा, है ना, 4 + 5 -9। और इसका अगर वाई बार किधर से मेजर करने का रे, यो एक्स एक्सिस से, ये वाई बार, ये वाई बार है। अभी ये अगर वाई बार है तो आपको ये पता है, इधर का 3 गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 बचेगा ना, ये 6, ओ 4 एंड 6 है, -10 -9 -10, समझ में आया, यस मोहम्मद आया वाई बार, परफेक्ट, ईशा यस, गुड, डन, फर्स्ट क्लास, ऐसा मजा आना चाहिए मैकेनिक्स में, वाह। चलो अभी ना और थोड़ा मजा करने का, अभी ये एक ट्रायंगल हो गया भैया, अभी दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इधर एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ना एक आइसोस्केलस ट्रायंगल रहता है ना, आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लैमिना, ये देखो, अभी ये सपोज, इधर एक्सप्लेन करता हूँ आपको पहले, ये सपोज आपका बेस, हाँ ये बेस है, एंड ये जो पॉइंट है ना इधर, किधर से, ये देखो इधर से डालता हूँ, ये ऐसा 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 एक लाइन डाल दिया, ओके। फिर ना इसको पकड़ के इधर खींचने का, ऐसा ये इधर से ना ऐसा खींचा इधर, ठीक है, हाँ बन गया आइसोस्केलस ट्रायंगल, यस। अभी इसमें क्या करते हैं कि ये आपका ऐसा इमेजिन करो कि ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि इधर बनता नहीं है इसमें ना, हाँ ये जो है टोटल बी है, हाँ
तो आई डिवाइडेड इनटू पार्ट, क्या होगा ये आपका b/2 रहेगा, ये आपका b, ये जो है दिस वन इज व्हाट, ये हाइट h, ये हाइट h, ओके। इधर ना ये x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। अभी सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, इज गिवन लैमिना इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है कि नहीं है। देखो सिमेट्रिकल अगर रहेगा ना तो सेंट्रोइड लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल है क्या, रहेगा तो कौन से एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, दिखना चाहिए आपको। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस क्या रहता है, दोनों साइड में एरिया सेम रहना चाहिए, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसा सेमी सर्कल है उसको सेंटर से कट करेंगे है ना, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलता है। तो ये आपका लैमिना जो है ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है। किधर सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस है ना, सिमेट्रिकल आ रहा हूँ वाई एक्सिस, परफेक्ट। आपका वाई एक्सिस हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो सेंट्रोइड किधर आना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आना चाहिए, मिस वाई एक्सिस पे है सेंट्रोइड। अब ये ट्रायंगल है ना, तो इसका जो सेंट्रोइड आएगा ना इधर, ये सपोज सेंट्रोइड, इसका डिस्टेंस जो है ना एक्स एक्सिस का इधर से, ये 1/3 ऑफ हाइट ही आएगा, ये 1/3 ऑफ हाइट, जैसा आपने नॉर्मल ट्रायंगल के रहता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 1/3 ऑफ हाइट, ये भी h/3। अभी आपका ऐसा अगर x बार y बार लिखना है ना आपको, तो ये क्या आएगा, x बार 0 हो जाएगा, क्योंकि x बार क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड, क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम y एक्सिस। तो आपका सेंट्रोइड तो y एक्सिस पे बढ़ गए, उधर स्वार हो गए इधर, ये क्या है ना, तो आपका x बार 0 हो जाएगा और y बार तो आपका h/3 होगा। हाँ वो बहुत सिंपल, एकदम सिंपल, आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लैमिना सिंपल, करेक्ट, y बार h/3, हाँ, एंड x बार 0, x बार 0, y बार h/3, क्लियर। चलो अभी इसका थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको ना बाहर नहीं करने का, रट्टा नहीं मारने का, ऐसे बच्चे लोग आग बंद करके, x बार 0 y बार h/3, हाँ हाँ ऐसा नहीं करने का बिल्कुल। आपको क्या ध्यान में रखने का है, फॉर आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लैमिना centroid is located where, on its axis of symmetry, on its axis of symmetry, and from its base at what distance, h/3, है ना, करेक्ट, करेक्ट। x बार 0 y बार h/3 ऐसा नहीं ध्यान में रखने का, ऐसा बात नहीं करने का, कैसा ध्यान में रखने का, आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लैमिना है, ओके, सेंट्रोइड किधर आएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आएगा, उसका जो बेस रहता है ना, बेस, उससे फ्रॉम बेस अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिस्टेंस h/3, है ना। ये y बार माइनस नहीं होता है रे कार्तिक, y बार क्या रे -h/3 होगा ना, अबे यस एक्सिस के ऊपर है ना कार्तिक, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर इधर से वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है ना, अभी ये इधर जाएगा तो निगेटिव होएगा, इधर निगेटिव रहता है वाई, ये आपका एक्स वाई एक्सिस से 0 0 होगा आपका, है ना, करते समझ में आया कि नहीं, सॉरी एक 0 को शो है पहले, कार्तिक 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 वाई बार माइनस नहीं, हाँ कार्तिक वाई बार क्या है, पॉजिटिव। अब वो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा तो एक्स एक्सिस से ऊपर वाई क्या रहता है, पॉजिटिव। कितना ग्राफ बनाया रहेगा रे 11 12 में 9 10 में, एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा तो वाई नेगेटिव, ऊपर गया तो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा तो वाई पॉजिटिव, आणि एक्स बार, ओह हिमांशु शर्मा, एक्स 0 क्वेश्चन, कैसे रे हिमांशु, अभी तुमको ऐसा वाई एक्सिस है, हाँ आपको वाई एक्सिस पे इधर बिठाया, ये आपका डिस्टेंस कितना है रे वाई एक्सिस के, बताओ, वाई एक्सिस पे बैठा है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एक्स बार रहता है, तो क्या आएगा हिमांशु एक्स बार, अरे गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन पे गया, किसी ने किधर है रे, वो स्टेशन पे है, ए स्टेशन से तेरा डिस्टेंस कितना है, अभी 0 है ना, ऐसे ही ना, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, सेंट्रोइड किधर बैठा है, वाई एक्सिस पे बैठा है, उसको पूछेंगे तेरा डिस्टेंस कितना है रे वाई एक्सिस से, क्या बोलेगा, अभी 0 ही तो है, वाई एक्सिस पे हूँ, है ना, समझ में आया क्या हिमांशु। और आपने वाई एक्सिस पे सेंट्रोइड थोड़ी है सर, पर आपने वाई एक्सिस पे सेंट्रोइड
तो वाई एक्सिस पे है ना सेंट्रॉइड, ऐसा क्यों कर रहा है हिमांशु? वो सेंट्रॉइड, ये देख इधर मैं बनाया ना सेंट्रॉइड, मैं बनाया ना, ऐसा ही नहीं बनाया, देखो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, ये वाई एक्सिस दादा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाई एक्सिस क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, देखो लेफ्ट साइड में b/2 है, राइट में b/2 है, तो वाई एक्सिस आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो सेंट्रॉइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे रहता है हिमांशु, समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आया, सॉरी फॉर नहीं, उसमें समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन का होता है, बच्चे लोग हैं, छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर समझ में आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा चलता है ऐसा। हाँ चलो अभी, चलो अभी आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लैमिना के साथ में मजा मजा करते हैं। यस अभी आंसर पर करेक्ट निकालने का, आंसर करेक्ट निकालने का। बहुत डर लगता है आंसर रॉन्ग आता है तो, बहुत डर लगता है मुझे, आंसर बच्चों लोगों ने रॉन्ग निकाला ना, मेरा बीपी बढ़ता है, आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए, आंसर परफेक्ट आएगा ना तो हाँ यार, बाइट नहीं करने का कोई भी चीज, क्या ध्यान में रखने का, और पहले प्रॉब्लम के पहले मैं आपको बताता हूँ, क्या ध्यान में रखने का, ऐसा x बार 0 एंड y बार h/3, ऐसा मगअप नहीं करने का, ऐसा दिमाग नहीं लगाने का, क्या करने का, सेंट्रॉइड ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लैमिना लाइज वेयर ऑन axis of symmetry, and from its base distance how much, 1/3 of height. Sir, how to find axis of symmetry? अरे axis of symmetry म्हणजे मूर्खा काय असते सांगू का तुला, कोणताही लॅमिना दिला की त्याला ना असा कापायचा की दोन्ही साइडला एरिया सेम, चपाती घेतो ना आपण सर्क्युलर असते बरोबर, अर्ध्यातून तोडली, तो जो आहे तो झाला ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, दोन्ही सेम बाजूला सेम, परफेक्ट सेम, बरोबर. आता असा सर्कल आहे, हा अरे ज्या असा कापला झाला ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, इकडे आणि इकडे एरिया सेम. हा हे बघा आता कसं कसं करायचं, हा आयसोस्केलस ट्रायंगुलर लॅमिना घेतलाय ना, ये हा सेंटर आहे, ए b/2, हे b/2 घाल नाही काप तलवारीने असा 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 असा, हा हा आणि हा एरिया दिस वन एरिया इज नॉट सेम, बरोबर ना, दोन्हीकडे एरिया सेम आला पाहिजे, अशी जर लाईन टाकता आली तर इट इज कॉल्ड एज ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, द लाईन विच perfectly bisects the total area into equal parts, it is called as axis of symmetry. यश कळला का, समझा कि नहीं रे भाई? हाँ आएगा आएगा, समझ जाएगा। हूँ सर, यस ये देखो, हाँ ये एक्सो एक्सिस बनाया, हाँ चलो अभी ये देखो, हाँ ये आपका ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा एक लाइन, ये ऐसा, ये सेम डिस्टेंस है, ये 5 मीटर, हाँ चलो ये भी 5 मीटर, हाँ चलो ये 4 मीटर, हाँ हाँ ये कितना लेते हैं, चलो ये 6 मीटर, और ये जो है ना इसको थोड़ा लंबा चौड़ा लेते हैं, चलो 12 मीटर, लगाओ दिमाग। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, अब x बार y बार तो जस्ट सोचा
एक्स बार हाउ मच यू आर गेटिंग, एक्स बार आया बच्चे लोगों, एक्स बार 10, एक्स बार 10, वाई बार 9, ये देखो, हाँ करेक्ट है, देखो एक्स बार इफ विल सी हियर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज विच लाइन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री किधर है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सेंट्रोइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आता है, बेस से कितना डिस्टेंस रहता है, 1/3, 1/3 ऑफ रिस्पेक्टिव डायमेंशन है, देखो ये हाइट है इधर तो ये कितना हो जाएगा 4 मीटर, ये सेंट्रोइड आएगा, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा, दिस वन इज हाउ मच डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका, ये इधर 6 है ना, ये 6 यानी कितना होगा 4, 6 + 4 है ना, 6 + 4 कितना होगा 10 मीटर है ना, करेक्ट। एंड ये जो एक्स बार, हाँ एक्स बार, एंड ये डिस्टेंस आपका वाई बार हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई बार, ये इधर ये 5 है एंड ये 4 है ना, ये 4 है, 5 + 4 ये 9 मीटर, एक्स बार 10 एंड वाई बार 9, करेक्ट। एक्स बार वाई बार निगेटिव नहीं रहे, ये वाई बार माइनस नहीं है ना ऋतुज, नेगेटिव नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ आई थिंक वो डैश है, हाँ तो यस निधि एक्स कितना आ गया 12 आया क्या बेटा, नहीं रे, ए निधि ने कुछ तो गलत आंसर लिया, ये कितना है निधि, ये आपका 6 एंड ये जो है रिमेनिंग इज व्हाट 4 है ना, हाँ ये 12 नहीं होगा ना, नहीं होगा। आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लैमिना के लिए बेस से सेंट्रोइड कितने डिस्टेंस पे रहता है अलोंग एक्स, 1/3 ऑफ हाइट, हाइट कितना है 12 है ना, करेक्ट, हाँ तो आपका 6 + 4 10, ठीक है। चलो और थोड़ा मजा करते हैं, हाँ नाउ सी वन मोर ट्रायंगुलर लैमिना इज रिप्रेजेंट, देखो इधर ऐसा आ गया, ये आपका ऐसा आ गया, हाँ ये ऐसा है, ये आपका ऐसा है, हाँ तो ये 4 मीटर, ये 4 मीटर एंड ये जो है ये आपका 15 मीटर है एंड दिस वन इज व्हाट, ये 2 मीटर है, हाँ ये 2 एक वर्टेक्स इसका, ठीक है, ये आपका ऐसा आ गया, हाँ ये ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ ओके। चलो पहले एक्स बार बताओ तो कितना है, वन मोर डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड है ना, ये डिस्टेंस लगेगा ना भाई, हाँ ये डिस्टेंस, चलो ये 6 मीटर है, एक्स बार एक्स बार एक्स बार 10 -10, ये माइनस की प्लस रे लेफ्ट साइड में आएगा ना, ये इधर आएगा ना सेंटर, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव आता है ना, ये सेंट्रोइड, तो आपका एक्स बार माइनस आएगा, दैट इज 6 + 4 10 मीटर है, अपर्णा एक्स बार -10 परफेक्ट। चलो अभी वाई बार देखो, वाई बार अभी आपका बेस से ये डिस्टेंस जो है ये 1/3 हो गया ना, तो ये आपका 5 मीटर, तो ये कितना बचेगा बच्चे लोग, ये 10 है ना, ये 10 और ये 2, ये तो 12 हो जाएगा, एकदम सिंपल, ये 12 मीटर हो जाएगा, हाँ यस यस यस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है ना, यस 12 मीटर, इस बार कितना है -10 मीटर, परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है, सबको समझ में आया ना एक्स बार वाई बार, अभी किसी को कुछ कंफ्यूजन, हाँ तो ये सिंपल है, अभी ये अगर समझ में आएगा ना तो सिंपल। अभी आपका जो है अपने सिलेबस में क्या आता है ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगुलर लेमिना, दूसरा आएगा आपका आइसोस्केलस ट्रायंगुलर ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगुलर लेमिना, सेकंड आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लेमिना, बाद में आएगा सर्कल, फिर आएगा सेमी सर्कल, फिर आएगा क्वार्टर सर्कल, नेक्स्ट आएगा सेक्टर, ठीक है। अभी ना नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, अभी आपका सर्कल हो गए, राइट एंगल ट्रायंगुलर लेमिना हो गए, ओके, आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लेमिना हो गए। चलो अभी सेमी सर्कुलर लेमिना पकड़ते हैं, सेमी सर्कुलर लेमिना, सेमी सर्कुलर लेमिना जो है इसका जो सेंट्रोइड रहता है इट इज वेयर, तो फर्स्ट वन, ये अभी ना सेमी सर्कल निकालना इसमें बहुत डिफिकल्ट है,
विल ट्राई आ गया भाई। हाँ, ये सपोज सेमी सर्कुलर। तो हियर फॉर सेमी सर्कुलर लैमिना, ये अगर सेमी सर्कल है राइट, तो ये जो है ना ये सेमी सर्कुलर लैमिना है, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको अज्यूम करो कि ये हाँ ये ऐसा ये वाला ये सेमी सर्कुलर लैमिना है। ये लैमिना है, सरफेस है, पीस ऑफ पेपर पकड़ो इसको ऐसा, या गए सेमी सर्कुलर लैमिना। इसका जो रेडियस है ना ये समथिंग विल अज्यूम कि बाबा रेडियस कितना आना चाहिए, हाँ ये आपका रेडियस आर, ठीक है। रेडियस इज व्हाट आर। इधर थोड़ा एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर डालते हैं ना तो ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, है ना। आई विल गिव नेम टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई, ये जो है दिस वन इज व्हाट एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो सेंट्रॉइड विल गेट ऑन विच एक्सिस, एक्स की वाई, तो आपको पता है सेंट्रॉइड लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जैसे आइसोस्केलस के लिए ऐसे किया था ना, अभी भी किया था सेम, है ना। तो आपका वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो सेंट्रॉइड किधर आएगा, ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपका ये एक्स बार जीरो हो जाएगा, सेंट्रॉइड लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स बार क्या होगा जीरो। ये जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम डायमीटर, दिस वन यू हैव टू कीप इन माइंड वन फॉर्मूला कि फॉर सेमी सर्कुलर लैमिना फ्रॉम डायमीटर वी आर मेजरिंग, फ्रॉम वेयर वी आर मेजरिंग, फ्रॉम डायमीटर अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो डिस्टेंस है दिस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ रेडियस एज 4r अपॉन 3 पाई, 4r अपॉन 3 पाई। तो इसको कैसा ध्यान में रखना है, एक्स बार जीरो एंड वाई बार 4r अपॉन 3 पाई, ऐसा बाहर नहीं करने का। For semicircular lamina, centroid is always located on axis of symmetry. For any lamina, it is located on axis of symmetry. ये तो semicircle है, तो ये आपका y axis पे आएगा. Centroid lies on axis of symmetry, and from diameter it is at a distance of 4r upon 3 pi. For this configuration, for this orientation, आपका x bar 0 हो जाएगा and y bar is what, 4r upon 3 pi. Correct. तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखने का है, फॉर सेमी सर्कुलर लैमिना फ्रॉम डायमीटर अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिस्टेंस इज व्हाट, 4r upon 3 pi. Okay, now suppose if I'll draw one figure like this and if I'll say what is distance x bar and y bar, ऐसा अगर करते हैं तो ये सपोज आपका y एक्सिस, हाँ दिस इज व्हाट, ये y, ओके, एंड ये जो है दिस वन इज व्हाट, ऐसा नहीं निकालने का, स्ट्रेट निकालने का। अरे ऐसा क्यों हो गया, हाँ ये आपका ये एक्स एक्सिस, हाँ ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अभी इसमें क्या करते हैं, आई विल रिप्रेजेंट वन सेमी सर्कुलर लैमिना, ठीक है। तो ये आपका सेमी सर्कुलर लैमिना, ये है सेमी सर्कुलर लैमिना, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर लैमिना। चैतन्य चॉकलेट खा रहा है, कह रहे हैं चैतन्य चॉकलेट खा रहा है, हाँ ये आपका सेमी सर्कुलर लैमिना, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है ना आर, ये दिया है समझ, आर इक्वल टू से 5 मीटर 6 मीटर 6 मीटर, ठीक है। और ये जो है ना ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज गिवन एज, ये 4 मीटर दिया है, ठीक है। देखो आंसर एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ना दिस वन इज ऑल्सो गिवन, चलो इसको ना 7 मीटर लेते हैं, ये 7 मीटर, मिस्टेक नहीं करने का। एक तो एक्स बार वाई बार दोनों पॉजिटिव आएगा, बिकॉज सेंट्रोइड आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, बिकॉज कंप्लीट लैमिना आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कंप्लीट लैमिना इज वेयर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी ना पहले इसमें अच्छा वाई बार आएगा क्या आंसर, अच्छा हाँ अभी देखो सेंट्रोइड किधर आएगा, ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आपका ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री परपेंडिकुलर रहता है डायमीटर पे ना, तो इधर आएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इधर आएगा आपका सेंट्रोइड। ये अगर सेंट्रोइड है तो आपका ये डिस्टेंस वाई बार हो जाएगा ना, ये सिंपल है निकालने के लिए, वाई बार इक्वल टू, देखो ये आपका 4 मीटर है और ये आपका रेडियस है 6 मीटर है ना, 4 + 6 4 + 6, ये तो 10 मीटर है, करेक्ट, ये 10 मीटर है ना, हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, वाई बार इज 10, एक्स बार कोई आंसर नहीं दे रहा है।
अब देखो कैलकुलेशन 4r/3π का कैलकुलेशन नहीं करना है, इन टर्म्स ऑफ 4r/3π। आंसर कैसा रहना चाहिए, देखो this one plus this one minus 4r/3π या this one plus 4r/3π, like this. We are not interested in calculation at this stage. I know you don't have calculator in first lecture, next lecture से वो कैलकुलेशन का पार्ट करेंगे। अभी आपका x बार जो है that will be how much, एक तो पॉजिटिव रहेगा, इसका प्रॉब्लम ही नहीं। whenever semicircular lamina is given, first you find out distance of diameter from respective axis। अभी आपको x बार निकालना है ना, तो आपका ये डायमीटर का पोजीशन है ना, ये डायमीटर है, तो ये डायमीटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखो भैया, ये एकदम सिंपल मेथड टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर। इधर भी सेमी सर्कुलर लैमिना रहेगा ना, तो उसका डायमीटर का डिस्टेंस निकालने का, तो आपका इधर 7 है, ये 7 ये आपका रेडियस है ना, ये तो रेडियस ही होगा ना, आर कितना है अपना 6 मीटर है, 7 + 6 कितना होगा, ये आपका 13 मीटर डायमीटर का डिस्टेंस है, एक्स बार नहीं है। ये आपका 13 मीटर डायमीटर का डिस्टेंस। अभी आपको पता है कि डायमीटर से सेंट्रॉइड कितने डिस्टेंस पे रहता है, ये 4r/3π है ना, 4r/3, उसको आर के टर्म में रखेंगे ना, बाद में करेंगे। दैट मीन्स 13 मीटर से ये 4r/3π माइनस करेंगे तो ये एक्स बार आएगा ना, करेक्ट। 13 मीटर से 4r/3π माइनस करेंगे, एक्स बार मिल जाएगा। दैट मीन्स इन शॉर्ट आपको अगर एक्स बार निकालना है तो क्या करेंगे, 13 माइनस 4r/3π। जब कैलकुलेटर आएगा उसमें टुक करके रेडियस डाल देंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। अभी फिलहाल अभी उसको अगर करना है तो आपका 13 माइनस 4r आपका 6/3π, ऐसा कुछ कर सकते हैं। 8/2 हो जाएगा, 4 × 2 8 होगा, 8/π। दैट मीन्स 13 माइनस 8/π, ऐसा कुछ लिख सकते हैं अभी फिलहाल, है ना, करेक्ट। आपको इम्पोर्टेंट क्या है, किधर से क्या डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, किधर से क्या ऐड हो जाएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्लियर, यस, डन। अभी सिंपल है, अभी सिंपल, हाँ, यस, तब फर्स्ट क्लास स्टूडेंट एकदम मस्त आंसर आ रहा है। अभी ना एकदम सिंपल देता हूँ, एकदम सिंपल, आपको ना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करने का। अभी ये आपका सेमी सर्कुलर लैमिना, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर लैमिना और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपका 6 मीटर है, एंड इसका जो रेडियस है ना आर, ये आपका 5 मीटर है, ओके। और ये एक डिस्टेंस लगेगा, चलो इसको 4 मीटर लेते हैं। ये एक्स बार, पहले तो ये माइनस डालने का, इधर ये भूलने का नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स बार, मोहम्मद बोल रहा है -9, कार्तिक बोल रहा है -9, अच्छा, ईशा का -9, हाँ, एक्स सिंपल है रे, है ना, बहुत सिंपल है। ये देखो, ये 4 एंड ये आपका रेडियस है ना, ये 5 एंड सेंट्रोइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आएगा ना, ये सेंट्रोइड है, तो आपका ये डिस्टेंस तो आपका ये एक्स बार होगा, तो एडिशन हो जाएगा, बट लेफ्ट साइड में तो माइनस आएगा, सिंपल। हाँ, वाई बार भी सिंपल है, ये भी डिफिकल्ट है। वाई बार बताओ, वाई बार ऐसा करेंगे, 4r/3π आपको लिखने के लिए बहुत तकलीफ होता है ना, 4r/3π का ना ऐसा करते हैं, दिस इज व्हाट इन इट डी, 4r/3π मीन्स डी, है ना, तो सिंपल हो जाएगा आंसर देने। ये तो एडिशन हो जाएगा ना इधर, है ना, ये देखो, ये 6 है एंड ये आपका 4r/3π मीन्स डी है, ये आपका वाई बार है, ऐड हो जाएगा रे, सिंपल है ना, 6 + 4r/3π, उसमें आर वगैरह डालेंगे जो भी रहेगा, आपको ना किधर प्लस है माइनस है ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। 6 + d, perfect, d means 4r/3π। just I taken कि that in chat box writing 4r/3π कितना बड़ा लिखना पड़ता है, एकदम सिंपल हो जाएगा। चलो 4r/3π d कर दिया, तो आपको आंसर देने में एकदम इजी होगा। क्लियर, तो सेमी सर्कुलर लैमिना इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट, है ना, सिंपल।
देखो काउंट करते जाओ कितना कितना हो गया, वो बढ़ते जाता है, पूरे पार्ट में आगे सपाट, लास्ट वाला भूल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ आशुतोष फर्स्ट क्लास, यस। अभी देखो एक आपका हो गया रेक्टेंगुलर लेमिना, नेक्स्ट क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगुलर लेमिना, नेक्स्ट हो गया थर्ड आइसोस्केलस ट्रायंगुलर लेमिना, फिर हो गया आपका सर्कुलर लेमिना, सेंटर पे आता है। अभी हो गया सेमी सर्कुलर लेमिना, है ना। चलो अभी क्वार्टर सर्कुलर लेमिना एकदम सिंपल, इससे भी सिंपल। अभी सेमी सर्कुलर लेमिना कैसा आता है, देखो ये सेमी सर्कुलर हो गया, क्वार्टर सर्कुलर। क्वार्टर सर्कुलर लेमिना का डिस्टेंस जो सेमी सर्कल का रहता है ना वही रहता है, हाँ थोड़ा भी डिफरेंट नहीं। ये एक्स एक्सिस, ये सपोज वाई एक्सिस, ये आपका क्वार्टर सर्कुलर लेमिना, ऐसा क्वार्टर 1/4 ऑफ सर्कल। ये इसका अगर सेंट्रॉइड इधर डालते ये सी, हाँ तो ये जो डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, ये आपका एक्स बार, ये डिस्टेंस होगा वाई बार, बोथ आर सेम एंड सेम एज दैट ऑफ योर क्वार्टर सेमी सर्कुलर लेमिना। 4r/3 पाई, ये 4 है, 4r/3 सेम, दोनों डिस्टेंस है। बट ये दोनों किधर से सेम है वो भी ध्यान में रखने का थोड़ा, किधर से सेम है। तो आपका क्वार्टर सर्कल के लिए ना ये इधर एंगल आपका ये 90 डिग्री आता है ना, तो इधर से 4r/3 पकड़ने का, ये एक साइड है ना क्वार्टर सर्कल का, ये दूसरा साइड, विच आर परपेंडिकुलर। जैसे राइट एंगल ट्रायंगुलर लेमिना के लिए 1/3 ऑफ बेस 1/3 ऑफ हाइट रहता है ना, ऐसे ही here for quarter circular lamina it is 4r/3 distance, but from where, from the two sides which are mutually perpendicular, एकदम सिंपल। अभी एनीवेयर क्वार्टर सर्कुलर लेमिना इज गिवन, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, है ना। अभी ये सपोज ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है, ओके। अभी सपोज क्वार्टर सर्कुलर लेमिना ऐसा दिया है कि बाबा दिस वन ये ऐसा क्वार्टर सर्कुलर लेमिना है, ठीक है। इसका रेडियस ना इधर डालता हूँ आर 10 मीटर, ठीक है, रेडियस कितना है 10 मीटर। अभी ना इसका ये एक डिस्टेंस दिया है, हाँ ये कितना डिस्टेंस होगा रे, 8 मीटर, और ये 6 मीटर है। चलो है ना, क्या निकलना है, एक्स बार एंड वाई बार, क्या होना चाहिए एक्स बार वाई बार। अब 4r/3 डीप पकड़ने का तो आपको आंसर देने में एकदम सिंपल हो जाएगा। पहले तो सेंट्रॉइड कहाँ पे रहता है, हाँ किधर रहता है 4r/3, किधर से 4r/3 फ्रॉम द टू साइड्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फ्रॉम द टू साइड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना, उधर से रहता है। तो आपका ये जो सेंट्रॉइड है हियर इफ आई रिप्रेजेंट, ये आपका इधर सेंट्रॉइड ऐसा किधर आएगा, इधर है ना, ये सेंट्रॉइड आपका, ये जो साइड है ये 90 डिग्री पे है ना, तो आपका ये जो है ये 4r/3 हो जाएगा, ये 4r/3 हो जाएगा, है ना। अभी आपका डिस्टेंस ये आपका एक्स बार होना चाहिए, ये एक्स बार 8 तो इधर तक है, इधर ये रेडियस आ जाएगा, ये आपका 10 यानी 18 हो गया, कितना हो जाएगा ये इधर तक 18, इसमें से ये छोटा डिस्टेंस निकालने का 4r/3 यानी से एक्स बार इज व्हाट 18 माइनस 4r/3 है ना, 18 माइनस 4r/3, यस। एंड वाई बार आपका देखो ये 6, ये रेडियस है ना 10, 16 कितना हो गया, ये 16 हो गया है ना, और ये आपका इधर से छोटा डिस्टेंस निकालने का, तो आपका ये वाई बार मीन्स 4r/3 माइनस करेंगे, है ना, वाई बार इज व्हाट 6 प्लस 10 है ना, ये 16 हो जाएगा माइनस 4r/3, क्लियर है ना, सिंपल, एकदम फर्स्ट क्लास, यस। हाँ हाँ आशुतोष मिश्रा चमक गया, यस। अभी ये क्वार्टर सर्कुल का ध्यान में क्या रखना है, फ्रॉम द टू साइड्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उधर से 4r/3 रहना चाहिए, ठीक है, उधर से 4r/3। सेमी सर्कल का डायमीटर से 4r/3 अलॉन्ग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वैसा ध्यान में रखने का, ठीक है, ये हो गए। अभी ना एक लास्ट कंपोनेंट बाकी है, बस वो डिस्कस करते हैं, देन विल स्टॉप, एक 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स, हाँ। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल,
नहीं, जो सेक्टर रहता है ऐसा कुछ रहता है। हाँ, ये सेक्टर, सपोज ये ना, ये वाई एक्सिस, हाँ, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस, ये जो है दिस वन इज व्हाट ए एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सेक्टर मीन्स ऐसा लेता हूँ कि ये सपोज ऐसा, हाँ ऐसा है, एंड ये ऐसा कर्ड पर एक सर्कल रहता है ना, सर्कल का पार्ट है, पोर्शन ऑफ सर्कल, ये आपका परफेक्ट आर्क है। ये जो डिस्टेंस है ये आपका, अच्छा बनाने का जी, ऐसा नहीं, हाँ प्रॉपर, ये आर, ये रेडियस ऑफ सेक्टर, हाँ रेडियस ऑफ सेक्टर। और ये जो एंगल है ना, आई विल डिवाइड इन टू पार्ट्स सो दैट, उसका एडवांटेज देखो क्या है कि भाई ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो आपका एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा ना। इफ आई टेक एंगल अल्फा अल्फा ऑन बोथ द साइड, तो आपका अल्फा अल्फा एंगल अबो एक्स एक्सिस बिलो एक्सिस दोनों सेम है, तो एरिया अबो एक्स एक्सिस एरिया बिलो एक्स एक्सिस सेम हो गए, तो आपका एक्स एक्सिस इधर हो जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया आपका एक्स बार, क्यों हो गया, ऊपर एंगल अल्फा है, बिलो एक्स एक्सिस एंगल इज व्हाट अल्फा, तो आपका एरिया अबो एंड बिलो एक्स एक्सिस विल बी सेम। अगर सेम होता है तो एक्स एक्सिस बिकम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये आपका सेंट्रोइड जो है लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आपका अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो डिस्टेंस है दिस वन इज व्हाट, ये आएगा आपका एक्स बार। तो ये जो डिस्टेंस है आपको एक फॉर्मूला वापस याद रखने का है, ये हो जाएगा 2/3 आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अब देखो सेक्टर का ये जो एंगल है ना ट्वाइस अल्फा इज कॉल्ड एज व्हाट, इंक्लूडेड एंगल। ये क्या रहता है, ये इंक्लूडेड एंगल है। हाँ ये क्या है, इंक्लूडेड एंगल, हाँ इंक्लूडेड एंगल। तो आपने तो अल्फा अल्फा किया है, तो इसको ना सेमी इंक्लूडेड एंगल, सेमी मीन्स हाफ सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ सर्कल, ऐसे इंक्लूडेड एंगल सेमी इंक्लूडेड, हाँ इट इज व्हाट सेमी इंक्लूडेड एंगल। तो अल्फा इज कॉल्ड एज सेमी इंक्लूडेड। तो आपका ये जो एंगल आएगा ना साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, तो ये आपका सेमी इंक्लूडेड एंगल है, मीन्स टोटल एंगल किधर दिया रहेगा ना ऐसा 60 डिग्री है, तो अल्फा अल्फा आपका 30 हो जाएगा। अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये साइन के साथ में अल्फा अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं ना इधर, तो ये ना डिग्री में सब्स्टिट्यूट करने का, एंड सेपरेट अगर रहेगा अल्फा जैसा इधर है, तो ये जो है ये रेडियन में करने का, सब्स्टिट्यूट इन रेडियन। ऐसा ये तो आपको सबको पता है, 180 डिग्री मीन्स कितना रेडियन रहता है, पाई, है ना। 90 डिग्री कितना रहता है, पाई/2। 45 डिग्री कितना रहता है, पाई/4। अगर मैं 60 डिग्री बोला तो देखो 180 का पाई है तो 60 का कितना हो जाएगा, उसका 1/3 है ना, पाई/3 करेंगे, है ना, ये निकालने के लिए ना कि वो रेडियन में करने का एंगल। तो ऐसा ये स्टैंडर्ड एंगल ध्यान में रख सकते हैं। 120 डिग्री रहेगा तो इसको ये 2 पाई/3, 60 के डबल है ना, 60 180 का 1/3 है तो पाई/3 होगा। 120 मीन्स 2 पाई/3। 30 डिग्री रहेगा तो पाई/6। 1 डिग्री रहेगा तो, हाँ ऐसा दिया 19 डिग्री एंगल दिया ऐसा अल्फा करके 19 और कैसा निकलने का 180 मीन्स पाई ना, 180 डिग्री मीन्स पाई, तो 1 डिग्री कितना हो गया, पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। ये ध्यान में रखें, एट रैंडम एंगल रहेगा तो नॉर्मली 30 60 45 120 150 ऐसा आते रहेगा। फिर भी अगर नहीं ध्यान में रहता है कुछ तो चलो 1 डिग्री मीन्स व्हाट, 180 डिग्री मीन्स पाई, 1 डिग्री मीन्स पाई/180, सिंपल ऐसा ध्यान में रखने का। इसका ना एरिया भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को इसके लिए ना एरिया लगता है, जैसा अभी तक का जो एरिया था सब आता है आपको, है ना, रेक्टेंगल का बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, सर्कल का पाई/r², सेमी सर्कल का पाई/2, क्वार्टर सर्कल का पाई/4। ये सिंपल है, सेक्टर को कैसे निकालना है इसका पता है किसी को, एरिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा। आ जाएगा, नहीं आता है तो भी आएगा। देखो इसका एरिया निकालने का जो आपको पता है ना, उधर से इसका
आंसर आता है, एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ, अभी देखो सर्कल, अरे एरिया बताओ, एरिया बताओ, सर्कल का एरिया सबको पता है ना, अल्फा 180 पाई आर स्क्वायर, अल्फा 180 डिग्री। अच्छा ठीक है, वो सब निकालते नहीं अपन ना, वो निकालते। इसका कितना आता है, पाई आर स्क्वायर है ना, चलो पाई। अभी ना इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, देखो ये आपका ऐसा ना एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री डाल दो, इसका ना टोटल इंक्लूडेड एंगल, टोटल कितना है 360 डिग्री है ना, इस बार 2 पाई, यानी इसका ना ये एंगल उसका अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा ना, करेक्ट। टोटल कितना होगा 360, 360 मीन्स 2 पाई, अल्फा कितना होगा पाई, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, यानी ये अल्फा मीन्स ये पाई मीन्स सेमी इंक्लूडेड एंगल है बेसिकली, सेमी इंक्लूडेड एंगल इनटू रेडियस स्क्वायर, ठीक है। और एक लेते हैं ना, सेमी सर्कल, आपको पता है एरिया कितना है जी, पाई आर स्क्वायर बाय 2, मैंने पाई बाय 2 लिया, अभी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये आपका एंगल अल्फा है, एंगल अल्फा है, टोटल 180 डिग्री मीन्स टोटल पाई है, 2 पाई मीन्स पाई, तो अल्फा मीन्स ट्वाइस अल्फा ऐड करेंगे, अल्फा प्लस वन तो पाई होता है, 2 अल्फा इज व्हाट पाई, अल्फा कितना होगा पाई बाय 2, अल्फा कितना होगा पाई बाय 2, तो ये पाई मीन्स क्या वैल्यू है अल्फा, ये पाई बाय 2 मीन्स व्हाट सेमी इंक्लूडेड एंगल है ना। क्वार्टर सर्कल के लिए क्या एंगल रहता है, क्वार्टर सर्कल के आपको पता है 90 डिग्री है, हाँ सबको पता है ये 90 डिग्री रहता है, बट अपना तो ये ट्वाइस एंगल अल्फा है, 2 अल्फा है, इसका एरिया क्या रहता है पाई बाय 4 आर स्क्वायर, पाई बाय 4 मीन कहने से ये ट्वाइस अल्फा कितना होगा 90, 90 मीन्स कितना पाई बाय 2 होगा, तो आपका अल्फा पाई बाय 4 हो जाएगा। अभी बोलो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, सेम है ना, सर्कल लो, सेमी सर्कल लो, क्वार्टर सर्कल लो या सेक्टर लो, एरिया सेम है इन टर्म्स ऑफ एंगल, जो एंगल हो सब्स्टिट्यूट करने का सब फॉर्मूला आएगा, है ना। तो आपका बेसिकली ये जो एरिया रहता है, दिस इज व्हाट कैन यू से सेमी इंक्लूडेड, है ना, एंगल इंटू आर स्क्वायर, ऐसे होगा ना, सेमी इंक्लूडेड एंगल इंटू आर स्क्वायर, तो अल्फा आर स्क्वायर कैपिटल आर है, कैपिटल आर का स्क्वायर, सिंपल है ना, नॉट डिफिकल्ट, मैकेनिक्स इज इजी सब्जेक्ट। तो सेमी इंक्लूडेड एंगल इंटू रेडियस स्क्वायर ऐसा डालने का, क्लियर, समझ में आ रहा है।